को हमारे साथ धोखा हुआ है, कंपनियों को हमने धोखा करी है। हमारे साथ जो हमारा अमाउंट 6.5 करोड़ रुपया ना हमारे 4 आदमी को 6.5 करोड़ हमारे साथ अभी तक पैसा का बात रेस्पॉन्स नहीं। ಇವರು ಸತ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿ, ಅದು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಲಿಮಿटेड। मोहम्मद उमर नामी एक शख्स ने एक कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया। मोहम्मद उमर का कहना है कि कंपनी ने लगातार रॉ मटेरियल इनसे मंगवाया और जब पैसे देने की बारी आई तो वो ना ही रब्ता कर रहे हैं और ना ही फ़ोन रिसीव कर रहे हैं। इस मामले में उन्होंने तमिलनाडु के होसूर में उन्होंने एक FIR भी दर्ज कराया है और लगातार कोशिशों के बावजूद कंपनी का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। इस सिलसिले में उन्होंने अपने एडवोकेट के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। बेंगलुरु में मुनक्कदा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तफसीलात बताए कि किस तरह से वो और उनके साथियों का रॉ मटेरियल उनके साथियों से मंगाए गए थे। तकरीबन 4 से 5 लोगों ने उन्हें रॉ मटेरियल सप्लाई किया था, जिनमें से एक शख्स रॉ मटेरियल के पैसे न मिलने की वजह से घबराहट में हार्ट अटैक आने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। उन्होंने कहा कि इसकी मौत की जिम्मेदार भी वही कंपनी है। एसोसिएट डेकोर लिमिटेड नामी इस कंपनी के कई ब्रांचेस हैं, जिसमें कर्नाटक में कोलार के करीब मालूर में इसका एक ब्रांच है जहां उन्होंने ये सप्लाई किया था। आइए जानते हैं ये क्या कह रहे हैं। ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದರೆ, ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನೋಂತಹ ಕಂಪನಿ ದೊಡ್ಡ ಫ್ರಾಡ್ ಕಂಪ್ನಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ। ಇವರು ನಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರರಾದಂತಹ UAS ಫೈರ್ವುಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಅನ್ನೋಂಥ ಕಂಪನಿಗೆ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ಮೋಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ। ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರರ ಹತ್ರ 2 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತಹ ಫೈರ್ವುಡ್ಡನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ। ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ 1 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ। ಆದ್ದರಿಂದ ಇದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟು FIR ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ। ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 4 ಜನ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಟೋಟಲ್ಲು UAS ಫೈರ್ವುಡ್ ಸಪ್ಲೈ ನಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರರ ಹತ್ರ 2 ಕೋಟಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ರಾಘವೇಂದ್ರ ಟ್ರೇಡರ್ಸು ಇವ್ರ ಹತ್ರ 2.5 ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮೋಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ। ಶಬರಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ್ ಅವ್ರಿಗೆ 1,75,00,000 ಮೋಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ। ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸು ಇವ್ರಿಗೆ 19 ಲಕ್ಷ ಮೋಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ। ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಇವರು। ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಸೆಲ್ವಕುಮಾರ್ ಅನ್ನೋರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಟ್ರೇಡರ್ಸು ಆ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಇವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಆಲ್ರೆಡಿ FIR ದಾಖಲು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ। ದಾಖಲಾದ ನಂತರ 5 ದಿನಗಳಾದಮೇಲೆ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗ್ತಾರೆ। ಇವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟಾರ್ಚರಿಂದ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗ್ತಾರೆ। ಅದಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರರು ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ FIR ದಾಖಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ। FIR ದಾಖಲಾದ ನಂತರ ನಾವು ಸಹ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಪಿಟಿಷನ್ ಹಾಕಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಗೊತೀವಿ ಪೊಲೀಸರು। ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟು UAS ಫೈರ್ವುಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಹೆಸರು, ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಅದು। ಸೊ ನಾವು ಸಹ ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಪಿಟಿಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ। ಟೌನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಹೊಸೂರು ಠಾಣೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಕೇಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಪಿಟಿಷನ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ। ಅದೇ ಸಲುವಾಗಿ ಹೈಕೋರ್ಟು ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ರಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ। ಅದ್ರದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನ ಕಾಪಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಹಾಕಿದಂತಹ FIR ಕಾಪಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಡೆದಂತಹ FIR ದಾಖಲಾಗಿರೋಂತಹ ಕಾಪಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಮತ್ತು ಇವ್ರ ದೌರ್ಜನ್ಯದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಫೋಟೋವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ। ಇವರು ಸತ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿ, ಅದು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಅದೇ ಕಂಪನಿ। ಇವರು ತೀರೋಗಿರೋದು ಇವರಿಂದಾನೇ ಅನ್ನೋದನ್ನ
ಸಾರಿ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು ಅವ್ರು? ಯಾಕಂತಂದರೆ FIR ಆಗಿದ್ದು 10 ದಿವಸ ಅಥವಾ 5 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮೃತಪಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಕಾರಣ? ಅದೇ ಕಾರಣ. ಅದೇನೋ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲ ಅದು FIR ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು. ಓಕೆ. ನೇರ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಅವರೇ. ಟಾರ್ಚರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಅವ್ರು ತೀರೋಗಿರೋದು ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. क्या मसला है आपका? साहब मेरा नाम मोहम्मद उमर, मैं कंपनी को आको 2010 से मैं यहाँ को एसोसिएट डेकर जो मालूर में है यूनिट, वो कंपनी को आको मैं वुड रॉ मटेरियल सप्लाई कर लगा हूँ. रॉ मटेरियल सप्लाई करने में एक गाड़ी को लोड कर को परमिट के साथ बाई लीगल के साथ वुड कंपनी को सप्लाई कर रहे हैं हमें एज पर गवर्नमेंट परमिट के साथ. रात दिन वाखा पड़ को कंपनी को वुड सप्लाई करती. वो कंपनी में आको एसोसिएट डेकर जो मालूर में है सो यूनिट, उस कंपनी में आको 800 जने तक करीब काम करते. जब हमें वुड रॉ मटेरियल्स नहीं सप्लाई करे तो हमारा 800 आदमियों का भी बहुत काम का तकलीफ होता है को हमने डायरेक्टर बोले. इस वजह से हमें आको हमने जो परचेस ऑर्डर दिए एज पर टर्म एंड कंडीशन 30 डेज पेमेंट टर्म कंडीशन से दिए परचेस ऑर्डर में. वो परचेस ऑर्डर में जो 30 डेज के पेमेंट कंडीशन में मुझे आको मैं वुड सप्लाई कर लगा था. मुझे अब जरा चंद दिन से मेरे साथ बहुत ना इतफाक़ी और ना कुछ भी मेरा फ़ोन रिसीव नहीं कर रही. मैं वुड सप्लाई कर को कंपनी को मुझे एकदम मेंटली टॉर्चर ये करा. अब तक मेरा 2 करोड़ रुपए मुझे कंपनी एसोसिएट डेकर लिमिटेड से मालूर में है सो यूनिट, वो कंपनी से मुझे आको 2 करोड़ रुपए मुझे आना है. बोलने गए तो करेक्ट अप्रॉक्सीमेट अमाउंट 1,93,78,307 रुपीज़ मुझे आने का है. ऐसे में आको हमें तमिलनाडु के 4 पार्टियां ही, 4 पार्टी में आको उसमें मैं 4 में आको मैं एक, मेरा साथ और एक जने थे 2 करोड़ 40 पर 6 लाख रुपए आना. उन्होंने आको घर में खर्चदारी संभाले नहीं जैसा उन्होंने मेंटली टॉर्चर होको एकदम कंपनी का पेमेंट नहीं आने से एकदम हार्ट अटैक में प्रेशर में छोगे घर के पास खर्चदाना आको. और जो हमारे साथ हालत है यही हालत जो गुजर रही है, हमारी भी तंगदस्ती की ज़िंदगी गुजर रही है. कंपनी जब हमना वुड होना बोले इस टाइम को हमारे साथ बहुत अच्छा बिहेव करे, बुलाए हमना बॉम्बे को फ्लाइट टिकट डाल को बुला को खाना पानी डाल को बहुत हमना रिस्पांस करे. अब इसके बाद हमारा वुड हमारा रॉ मटेरियल ले को हमारे साथ जो धोखा हो रहा है, हमना आको अब कंपनी के हेड ऑफिस को गएगा तो भी हम ना को एंटर नहीं कर रही. हमारा फ़ोन ब्लॉक कर डाली. जो लेटर हमें कहते भी एक एक्सक्यूज़ को मेल भेजे या लेटर दिएगा तो लेटर को रिफ्यूज़ कर को वापस भेजती. एक्नॉलेजमेंट के साथ डेट के साथ लेटर मैं भेजा हूँ, 2 बार भेजा हूँ, 2 लेटर भी वापस कर डाले मेरे साथ. ऐसे में हमें ज़िंदगी में हमें एक छोटे बिजनेस वाले हमें बाहर खर्च लेको लोन लेको हमें कंपनी को वुड सप्लाई करे. ऐसे में हमें बहुत स्ट्रगल होको बहुत मेंटली टॉर्चर में ही हमें बहुत मदद करना है. आप मीडिया वाले जो प्रेस वाले जो आए ही तो हमने बहुत मदद करना है. अब इसके बाद हमें जो कानूनी कार्रवाई जो करने का वजह क्या है तो मजबूर होको जो हमें इस हालत को कानूनी कार्रवाई करना पड़ा. हाई कोर्ट में डायरेक्शन लेको यहाँ से FIR डाल को ही एसोसिएट डेकर लिमिटेड 11 डायरेक्टर्स के ऊपर. ऐसे हालत को हमें जो प्रेस और मीडिया के साथ हमें जो बहुत हमारी मदद होना को एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह. पूरा नाम आपका? मेरा नाम ये मोहम्मद उमर, US फायरवुड प्रोपरेटर नहीं. क्या डिमांड्स है आपकी, क्या करना है? मेरा डिमांड्स क्या है तो मेरा अमाउंट रिफंडेबल होना. मैं यहाँ को खर्चदारी में फंस गया हूँ. मेरे फैमिली बहुत मेंटली टॉर्चर में है. मैं यहाँ को बहुत स्ट्रगलिंग में हूँ. मेरे साथ जो 3 मेरे तमिलनाडु के जो पार्टीज हैं, राघवेंद्रा ट्रेडर्स और सबरी एजेंसी और कार्तिकेयन ट्रेडर्स, इन चारों भी हमें मिलको हमारे साथ धोखा हुआ है. कंपनी हमने धोखा करी है. हमारे साथ जो हमारा अमाउंट 6.5 करोड़ रुपया ना हमारे 4 आदमी को 6.5 करोड़ हमारे साथ अभी तक पैसे का बात रिस्पॉन्स नहीं. कुछ फ़ोन करे तो फ़ोन रिस्पॉन्स नहीं, क्या भी नहीं. कोई हमारे को बताने वाला नहीं.
हमारे पैसे कब आएंगे क्या आएंगे कोई बताने वाला नहीं है इंशाल्लाह। क्या भरोसे पुत्र हुए दिए और जाको उनसे मिले फिर? हमें जाको उनसे मिले, हमें भरोसा क्या वजह से दिएगा तो उन्होंने जो कंपनी का जो टर्म्स एंड कंडीशन था परचेस ऑर्डर, वो परचेस ऑर्डर के टर्म्स एंड कंडीशन में हमें आको वुड उनको सप्लाई करती, इतना क्वांटिटी देना, इतना क्वालिटी देना और इतने टाइमिंग में आना अगर को बोल को वुड रॉ मटेरियल उनको दिए तो वो टाइमिंग में हम आपको 30 डेज के पेमेंट में हम ना देती, 30 डेज के ऊपर भी होगा हमारा पेमेंट, साल के करीब में हो रहा है हमारा पेमेंट अब आने का। इस वजह से हमें आप लोगों की मदद चाह रहे हैं हमें इंशाल्लाह। डायरेक्ट जाको मिले उनसे? डायरेक्ट बॉम्बे को एक से दो बार नहीं बहुत से मिले आपको? क्या नाम? मोहम्मद यहिया उनके पास जाको मिले और उनके अब्बा फारूक दरवेश उनके पास भी जाको मिले। उनको पूछो बोले तो उनको पूछे तो मेरे बेटे के पास पूछो बोलती, इनको पूछे तो वो अब जो यहाँ ही कर्नाटका में 2 डायरेक्टर्स हैं, यहाँ आको नूरुद्दीन खान और एक फारूक अली खान, 2 जने डायरेक्टर्स हैं, उनको भी जाको बात करेगा तो इसके बारे में मुझे पूछो न को। बॉम्बे में जो डायरेक्टर हैं मोहम्मद यहिया उनको पूछो और को बोल रही नूरुद्दीन खान। कितने साल हुआ सर बिजनेस? मैं स्टार्ट कराया सो बिजनेस 2010 से स्टार्ट कराया सर। मैं आज पर लीगल से GST क्या इनकम टैक्स पूरा फाइल कर को लीगल से पूरा करेक्ट है मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट्स। और ये कितने दिन से पेंडिंग है पेमेंट? मेरा पेमेंट ये कम से कम 3.5 साल से पेंडिंग है सर।